Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope everyone is doing great and is very positive and preparing well for the exams. So those who are new to the channel, I would like to give you all a brief introduction about the channel. I am Alka Kandwal and the channel is an educational channel wherein we take computer science for PGT and TGT computer science. That is our main focus. Along with it, we also take computer science for all the competitive exams because we all know computer is a very important part for all the exams nowadays. So we take up computer so that those who are not from the computer background, they also don't face any difficulty when they attempt the questions related to computers. And then we take up the mathematics session. I will be taking interest in mathematics session from grade 7 to 8 as of now. Later, I will be taking for 11 and 12 as well. So those who have not yet liked, shared and subscribed, make sure you are liking it, sharing it and subscribing to the channel and also clicking on the bell notification. So as and when the new video is uploaded, you are notified about the same. So we had a gap on the Python series. We had discussed all the chapters from grade CBSE 11th. We have discussed the chapter from 1 to 8 till data handling. Now flow of control is the next chapter for all the children who have taken computer science as elective in grade 11. So they can also feel that they are benefited from the series. So today, moving ahead after the half yearly exams, let us start with flow of control. Okay, so let us start with the topic today. Let us get started without wasting much time. So now what happens? Now we have been discussing about the programming. हमने प्रोग्रामिंग के बारे में बात की और हमने ये भी देखा कि जैसे इनपुट कैसे करना है. एक इनपुट फंक्शन है, वी आर हैविंग द इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन टू कन्वर्ट अ पर्टिकुलर. जैसे इनपुट हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग में देता है. जैसे हम नेम इनपुट कर रहे हैं तो हम सीधे इनपुट लगाएंगे. अगर हम कोई नंबर को इनपुट कर रहे हैं तो हम ए को इंट फिर इंट फिर इनपुट जो स्ट्रिंग है उसको या तो इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं या फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं. अब ये हमको बेसिक प्रोग्रामिंग आ गई कि जिसमें ऐड करना है दो नंबर. अब हम लोग ने ये सीख लिया कि मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या करना है, दो वेरिएबल्स वी हैव टू डिफाइन, देन वी हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन. दिस बेसिक ऑपरेशंस वी हैव डन. नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट we have done some mathematical module. I have given a session on mathematics module as well. So just if you have not seen, just go through it because there is there are very important operators which we should know when we start the programming part. Now let us see. If I tell you all that we want to do a program and we need to check that whether a number is even or not. Okay, check whether a number is even or not. तो जब भी एक कंडीशन है, अब हमारे पास एक कंडीशन है कि वो नंबर इवन है या नहीं है. पहले तो हमको खुद पता करना पड़ेगा कि क्या लॉजिक लगाएं. तो आप लोग पहले देखो कि जब भी कोई भी हम इवन नंबर ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, whatever even numbers you are taking, if you are dividing it with 2, what is the remainder you are getting? 2 divided by 2, remainder 0. 4 divided by 2, remainder 0. 6 divided by 2, remainder 0. 8 divided by 2, remainder 0. मतलब कि जब भी कोई इवन नंबर को हम लोग डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो 0 आ रहा है. तो मैथमेटिक्स मॉड्यूल जब हमने पढ़ा था तो उसमें कौन सा ऑपरेटर है जो हमको रिमाइंडर बताता है? डू यू रिमेम्बर? डिड वी डिस्कस अबाउट दिस ऑपरेटर? दैट इज द मॉड्यूलस ऑपरेटर. The name of this operator is modulus operator or mod operator. तो अगर मैंने बोला 8 mod 2 तो इसका आंसर आ जाएगा 0. 2 4 8, रिमाइंडर 0. तो हम लोग ये फंक्शन यूज कर सकते हैं टू राइट दिस प्रोग्राम टू चेक द whether a number is even or not. Yes, so let us do it in Python console only. Okay, so I will be sharing the IDLE Python. So I was telling you about the interactive mode. So this is your
इंटरैक्टिव मोड। डू यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि ये 3 एरोज आएंगे जब आप लोग पाइथन इंस्टॉल करोगे, तो ये पहले आपको ये प्रॉम्प्ट मिलेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 5 + 5, तो वो सीधे हमको आउटपुट यहाँ पे दे देगा 10। तो ये है इंटरैक्टिव मोड कि तुरंत हमने इनपुट दिया, तुरंत हमको आउटपुट मिल गया। अब जो दूसरा मोड होता है वो स्क्रिप्ट मोड होता है, जो कि ये है, मैंने फाइल में गई, मैंने न्यू ओपन किया एंड देन आई just open the file, and this is your script mode. Now what we will do, let us take two question क्या था, to check whether a number is even or not. So let us input a number, int input, we have to be very careful about the indentation. अभी बताती हूँ indentation का मतलब क्या है। जैसे मैंने लिख दिया enter whatever you want in the output, you can write enter the number, ठीक है, जिसको चेक करना है कि वो इवन है कि नहीं। ओके, एंड नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हमने 2 ब्रैकेट खोला तो 2 ब्रैकेट बंद भी होने चाहिए। फिर हमने चेक कर लिया इफ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इफ एल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कंडीशन हो हम इफ एल्स मॉड्यूल यूज करेंगे। इफ एक्स मॉड, हमने अभी पढ़ा एक्स मॉड 2, और कंपैरिजन के लिए क्या ऑपरेटर होता है, इक्वल टू 0, देन प्रिंट x, okay, is an even number। ये हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा else, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो प्रिंट x and what we will do is an odd number। Here we go, fine। तो ये हो गया हमारा x is an odd number। प्रोग्राम तो कंप्लीट लग रहा है। अब इंडेंटेशन, मैं बार बार बोल रही हूँ कि इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। आप लोग ने देखा कि इफ x mod 2 is equal to 0 के बाद हमने एक कोलोन लगाया, जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे एक स्पेस छूटी, एक टैब की स्पेस छूटी, दैट इज द इंडेंटेशन। सो इंडेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे सी प्रोग्रामिंग है, C++ है, जावा में, उसमें हम लोग ब्रैकेट लगाते थे, मगर इसमें हम लोग स्पेसिंग शुड बी प्रॉपर, अदरवाइज आउटपुट विल बी रॉन्ग। अब आप आपको रन करना है, F5 को क्लिक कीजिए फ्रॉम द कीबोर्ड, और यू कैन गो टू हियर रन मॉड्यूल। नाउ सोर्स कोड मस्ट बी सेव्ड, ओके, तो ओके कर दो, आप लोग सेव कर दो। अब फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग द नेम AK, whatever you can give the even odd। अब देखो enter the number, enter the number, for example let us check 5। see 5 is an odd number, हमारा आउटपुट चेक हो गया है। सो व्हाट इज द इनपुट, क्या किया हमने, एंटर द नंबर, हमने एंटर किया 5, तो x अभी पॉइंट कर रहा है 5 को। इफ 5 mod 2, 5 mod 2 क्या आएगा, 2 2 4, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मॉड्यूलस गिव्स द रिमाइंडर, तो 5 mod 2 इज इक्वल टू 1 होना था। तो फिर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो फेल हो गई, तो वो एल्स पार्ट में चला गया। लेट अस चेक विद अनदर वैल्यू, व्हाट डू यू से? ओके, just hold on, here we go, let us see, I hope it's visible to all of you। so if I run the module again and if I tell enter the number, if I tell 4, 4 is an even number, so it is checking our program is working, is it not? so this is the logic behind the program। तो आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि हम लोग को क्या करना है जब हम लोगों को कंडीशन है। whenever there is a condition you will be using if else, if और else। तो if में हमने क्या किया, if x mod 2 is equal to 0, then it is an even number, print x is an even number, is it not? अब हमने यहाँ x को विद इन डबल कोट क्यों नहीं लिया, ताकि x की जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर की है, 5 डाली है, 4 डाली है, 20 डाली है, तो वो प्रिंट होगा दैट 20 इज एन इवन नंबर, 21 इज एन ऑड नंबर। एक और क्वेश्चन देती हूँ एंड देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन इट। मॉड्यूलस ऑपरेटर एक बार फिर चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको चेक करना है कि दोनों एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 2 नंबर्स, int input enter the first number, ठीक है, enter the first number। अगर हमको चेक करना है कि ये दोनों आपस में डिविजिबल है या नहीं, तो enter the first number, then what do we do, y, again enter the second number कर देंगे,
फिर देखिए, अगर एक नंबर दूसरे से डिविजिबल क्या होता है तो क्या होता है, रिमाइंडर जीरो आता है। सो इसलिए मैंने पहले मैथ मॉड्यूल पढ़ाया, ताकि कि वो ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे तो हमको सीधे पहले लॉजिक सोचना है कि अगर ये केस है तो हमने कैसे क्या लॉजिक लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा डिवाइड करने से, एक्स और वाई को डिवाइड करने से रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एक्स इज डिविजिबल बाय वाई। यस, एक्स इज डिविजिबल बाय वाई, अदरवाइज एल्स हम लोग लिख देंगे प्रिंट द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल। नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, डज इट मेक सेंस? तो ये है हमारा लॉजिक, नॉट डिविजिबल। इज इट फाइन? तो हम लोग यही करेंगे कि इफ एक्स मॉड वाई इज इक्वल टू जीरो, तो प्रिंट एक्स इज। तो अगर आप लोगों को करना है, सो व्हाट यू कैन डू, लेट अस डू दिस प्रोग्राम। डू यू वांट मी टू डू फॉर यू ऑल? So here we go. So let us edit this only. X is equal to y, and then let us enter y is equal to int, and then input, and then enter the second number. Is it fine? And whatever you want display जो करना है वो हमने within double quote लिख देना है. Enter the second number. Fine. अब ये हो गया. Enter the second number. Enter the number. Enter the second number. Is it fine? अब हमने क्या किया था, x mod y, अगर दोनों डिविजिबल होंगे तो x mod y, so x is divisible by ठीक है, else x is not divisible, let us do divisible by, here we go. So after you do the program, click on F5 or you go to run module. So source must be saved, it will be giving us the message. So see, x input, x is equal to int, and there we did not close it twice, so it will give you, this is the syntax error. So see the error aa jayega, error message, and there we go, run module, and okay, we go there, enter the number. जैसे मैंने 4 किया, enter the second number 2. अब 4 is divisible by 2, so you got the output. आपको समझ में आया? अब एक और चीज क्या की मैंने, जब हमने पहले यहाँ पे देखिए नंबर और यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा था नंबर, तो फिर कैसे आउटपुट आ रहा था? आउटपुट दिखाती हूँ आप लोगों को. सो तब आउटपुट आप लोगों का कैसे आ रहा था? सी, एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देयर विल बी नो स्पेसिंग. सी, एंटर द फर्स्ट नंबर और स्पेसिंग नहीं होगी. एंटर द सेकंड नंबर के बाद थोड़ी सी स्पेस बची हुई है. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे अगर स्पेस रखनी है तो थोड़ी सी हमने यहाँ स्पेस दे देनी. फिर x mod is y is equal to 0, print x is divisible by y, else. मतलब x और y को हमने क्यों नहीं रखा विद इन डबल कोट? क्योंकि हमको वो वैल्यूज चाहिए जो यूजर ने डाली है. x और y कौन से वैल्यूज को रेफर करता है, वो वैल्यूज हमको चाहिए आउटपुट में. अगर मैंने वो नहीं लिखा होता, इस x को इसके अंदर ही लिख दिया होता और यहाँ पे नहीं लिखा होता, तो देखते हैं आउटपुट में क्या असर पड़ेगा. ओके, रन मॉड्यूल, हियर वी गो, एंड देन एंटर द फर्स्ट नंबर 3 and 1, and x is divisible by 1, क्योंकि अब मैंने x को विद इन डबल कोट डाल दिया, तो इसलिए x की वैल्यू नहीं आई. दैट इज वाई whatever string I want, I am writing it within double quote. जो मुझे वैल्यू चाहिए वो without double quote I am writing. So this is the basic logic. आगे अब हम कल पढ़ेंगे regarding the for loop. अभी आप if else के बारे में अच्छे से पढ़ना, उससे पहले कल मैं आपके साथ if elif भी डिस्कस करूंगी. Till then, just go through it, practice, download Python and start practicing it. You will find it very, very interesting. So if you have not yet liked, shared and subscribed, make sure you are liking it, sharing it and subscribing to the channel. So thank you everyone.